Hello guys, welcome to Get Concept. So today we will discuss some questions of power electronics that are asked in the GATE 2021 examination. So let us start the video session today from this question. From the inverter, a single phase full bridge inverter fed by 325 volt DC produces symmetric square waveform across AB as shown. To achieve a modulation index of 0.8, the angle theta expressed in degrees should be rounded off to 2 decimal place. And also मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में बताया गया है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो डिफाइंड होता है एज द रेशियो ऑफ पिक ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ वी ए बी टू टू द अप्लाइड डीसी वैल्यू तो इसे लिखने की नीड नहीं थी, ये सभी लोगों को पता होता है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का डिफिनेशन क्या है। चलो ठीक है, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, कोई बात नहीं। तो इसको करते हैं। तो we know in case of single phase full bridge inverter the output fundamental peak output voltage is given by m into VDC, where VDC is the source voltage, m is the modulation index. So और यही definition बताया गया है, that is the peak of the fundamental ratio of the peak of the fundamental component of output voltage to the applied DC voltage. तो यहाँ से VDC, तो यहाँ से मुझे V01 पता चल जाएगा। ये डिफिनेशन क्वेश्चन के अनुसार दी हुई है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम V01 निकाल लेंगे, दैट इज m टाइम्स VDC, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 0.8 इंटू VDC एंड द इनपुट वोल्टेज इज 325। तो यहाँ से आ जाएगा 325 0.8, that is 260, that is 260 volt. now अगर हम इस वेवफॉर्म की बात करें, तो इसका फोरियर सीरीज लिखा जा सकता है, तो this can be written as in the form of Fourier series, that is summation from n equal to only odd harmonics will present 1 3 5 to infinity 4 VDC divided by n pi sine n d sine n ओमेगा नॉट टी, यही होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो फंडामेंटल मैक्सिमम वैल्यू है उसको निकाल लेंगे। तो फंडामेंटल मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी, V01 जो गिवन है वो कितना हो जाएगा, V01 दैट इज 4 VDC डिवाइडेड बाई पाई साइन डी। हमें क्या करना है, फंडामेंटल के लिए पुट n इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये पिक मैक्सिमम वोल्टेज है, दिस इज पिक मैक्सिमम वोल्टेज, और ये पिक मैक्सिमम वोल्टेज 260 है हमारे पास, 260 that is 4 into VDC that is the source voltage, that is given as 325 divided by pi and the sine d is pulse width, d होता है pulse width होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है दैट इज द 2d, और अगर ये थीटा है, ये सिमेट्रिकल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये अगर थीटा है ये भी थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा पाई माइनस
theta. So it means 2d will be equal to pi minus theta, that will give pi minus 2 theta. So d की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2 माइनस ऑफ थीटा. तो यहाँ से अगर इसमें हम साइन लगाए तो साइन डी विल गिव साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉस थीटा. तो साइन डी इज इक्वल टू कॉस थीटा. तो इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे. तो यहाँ से 260 will be 4 into 325 divided by pi and sin d can be written as cos theta. Sin d can be written as cos theta. So this will give cos theta will be equal to 260 pi. This is pi. यहाँ पे ये पाई है. It means 260 pi divided by 4 into 325. After solving this, theta will come out to be, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा तो यहाँ से थीटा आ रहा है 51.019 डिग्री. तो क्वेश्चन में थीटा के बारे में पूछा गया था. और थीटा की जो वैल्यू है वो है 51.09 डिग्री. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 51.09 डिग्री. ओके, इन डिग्री में पूछा गया था. तो यहाँ पे हमें पुट करना था 51.09 डिग्री. So next question is, next question is this question. That is question number 2. This question is from chopper. This question is from the chopper circuit. So the question is asking, consider the buck boost converter shown. Switch key, Q is operating at 25 kilohertz and 0.75 duty cycle. Assume diode and switch to be ideal. Under a steady state condition, the average current flowing through the inductor is in ampere. So let us assume the circuit to be in continuous mode. So in this case, ऐसा तो हमें पता ही होता है कि एवरेज करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर क्या होता है. इन बक बूस्ट कन्वर्टर जो एवरेज करंट होती है, ठीक है, इन बक बूस्ट कन्वर्टर आई एल एवरेज जो होता है वो कितना होता है, आई नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी. यही तो होता है, आई एल एवरेज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी. जब मैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाता हूँ तो ये डिस्कस करता हूँ कि ये आई एल एवरेज कैसे आता है, आई नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी. अगर मैं आई एल का वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूँ, दिस इज आई एल with respect to time, ठीक है. तो इस तरह का वेवफॉर्म आता है और जिसे हम कहते हैं दिस इज द आई एल मिनिमम, दिस इज द आई एल मिनिमम
और ये जो करंट है ये आई एल मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। और दिस वन इज द एवरेज करंट, और ये हो जाता है आई एल एवरेज। आई एल एवरेज, तो फ्रॉम करंट सेकंड बैलेंस, एम्पियर सेकंड बैलेंस, ओके, फ्रॉम एम्पियर सेकंड बैलेंस, एम्पियर सेकंड बैलेंस, हम लोग डेरिवेशन करते हैं आई एल एवरेज का, ठीक है। तो फ्रॉम एम्पियर सेकंड बैलेंस, एम्पियर सेकंड बैलेंस वी ऑल नो that is IC on dt plus IC of 1 minus dt equal to 0. And what is IC on? जब स्विच ऑन रहेगा, जब स्विच ऑन होगा उस केस में हम कह सकते हैं कि इंडक्टर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। और उस केस में डायोड रिवर्स स्टेट में चला जाएगा। तो अगर हम ये मान लें कि इस कैपेसिटर में जो करंट है, इस कैपेसिटर में जो करंट है एक्चुअली यहाँ पे ये बक बूस्ट कन्वर्टर है, ठीक है। तो बक बूस्ट कन्वर्टर में ये आई नोट करंट है, और दिस वन इज द आईसी करंट, दिस वन इज द आईसी करंट। सो ड्यूरिंग द ऑन कंडीशन ये डायोड है, ये डायोड जो है वो रिवर्स स्टेट में चला जाएगा, रिवर्स बाइस्ड। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि आईसी, हम ये कह सकते हैं कि आईसी अगर हम यहाँ नोडल लगाए तो दिस विल गिव आईसी प्लस आई नोट, टोटल आउटगोइंग करंट equal to 0. So IC will be equal to minus of I naught during the on condition, during the on condition। तो ये आ जाएगा minus of I naught dt plus IC ऑफ, और जब हम स्विच को ऑन कर देंगे, सॉरी जब हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो उस केस में डायोड जो है रिवर्स स्टेट से फॉरवर्ड स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि अब क्या होगा, एनर्जी जो स्टोर किया था इंडक्टर वो अब रिलीज करने की कोशिश करेगा और उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, जिसकी वजह से डायोड जो है वो फॉरवर्ड स्टेट में आ जाएगा। और उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जब स्विच ऑफ रहेगा तो ये जो करंट है इंडक्टर में, जो करंट है ना, वो फ्लो करेगा, दैट इज द आई एल, दैट इज द आई एल, ठीक है। इस तरह से ड्यूरिंग ऑन कंडीशन आई एल, तो यहाँ पे सॉरी ड्यूरिंग द ऑफ कंडीशन, तो यहाँ पे अगर हम केसीएल परफॉर्म करें तो टोटल इनकमिंग करंट is IC plus I naught, this will be equal to outgoing current that is the IL। तो यहाँ से IC ऑफ आ जाएगा IL माइनस ऑफ I naught, और ये IC ऑन था, that is the माइनस ऑफ I naught। तो IC ऑफ हो जाएगा IL माइनस ऑफ I naught, 1 minus t equal to 0। This will give minus I naught d plus IL minus I naught 1 minus d इक्वल टू 0। तो इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से माइनस आई नॉट डी, यहाँ पे हमने टी को कॉमन ले लिया है, यहाँ पे हमने टी को कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो टी तो ज़ीरो होगा नहीं, सो दूसरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, दैट इज प्लस प्लस आई एल माइनस आई नॉट 1 माइनस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस ऑफ डी आई नॉट प्लस आई एल 1 माइनस डी माइनस आई नॉट 1 माइनस टी इक्वल टू 0 हो जाएगा।
this will give minus of di naught plus il minus dil minus I naught plus di naught इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से IL एवरेज will give, that is I naught divided by 1 minus d। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बूस्ट कन्वर्टर में भी आया था, दैट इज द I naught डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी। और ये एक्सप्रेशन, सेम एक्सप्रेशन इन केस ऑफ बक बूस्ट कन्वर्टर भी आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली जो है, क्वेश्चन जो है बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, जिसमें एवरेज करंट की इन्होंने बात की थी। तो ये मैं क्लास में अक्सर कराता हूँ, IL एवरेज वगैरह। तो अगर किसी को याद होगा तो डायरेक्ट जो है IL एवरेज I नॉट अपॉन 1 माइनस डी लिख कर भी वो आंसर को ला सकता था। ठीक है, तो नो नीड टू डिराइव, तो इसे डिराइव करने की जरूरत नहीं थी एग्जामिनेशन हॉल में। तो IL एवरेज इक्वल टू I नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी। तो बस सिंपली इस इक्वेशन को हम लोग केयर करेंगे। तो यहाँ से IL एवरेज आ जाएगा, IL एवरेज विल बी, that is I naught equal to V naught divided by R, V naught divided by R 1 minus D। or in case of buck boost converter, we know output voltage is dVs divided by R 1 minus D 1 minus D। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज कितना होता है इन केस ऑफ बक बूस्ट कन्वर्टर, दैट इज द dVs डिवाइडेड बाय 1 minus D। ठीक है, तो यहाँ से dVs डिवाइडेड बाय R 1 minus D का होल स्क्वायर। तो यहाँ से IL average will give D duty cycle is 0.75 and the input voltage is 20, input voltage is 20 given, fine, and what is the value of resistance, that is 10, and 1 minus D का होल स्क्वायर, that is 0.75 का होल स्क्वायर। तो this will give so this will give the 24 ampere। so the right answer for this question will be, that is the 24 ampere। 24 ampere is the right answer। so we have to put here 24 ampere। now next question, so this is question number 3। again this question is from the chopper circuit। so 2021 में दो क्वेश्चन जो है चॉपर से पूछे गए थे, एक बक बूस्ट कन्वर्टर है और एक बूस्ट कन्वर्टर है। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है वो इन्वर्टर से था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो था वो इन्वर्टर से था। तो क्वेश्चन नंबर 3 and this is the last question from the power electronics। so consider the boost converter shown in the figure, switch Q is operating at 25 kilohertz with a duty cycle of 0.6। assume the diode and the switch to be ideal under a steady state condition, the average resistance as seen by the source is। तो again in this circuit एवरेज रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया है। तो सिंपली एवरेज रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, VIN डिवाइडेड बाई
divided by IN, input voltage divided by input current. This will give the input resistance, and I am assuming the circuit to be in the continuous mode. Okay, so average resistance is input voltage, that is the 15 volt, divided by इनपुट करंट, यही होगा. तो इसका मतलब मुझे इनपुट करंट निकालना है. एंड व्हाट इज द इनपुट करंट? इनपुट करंट, दैट इज द सोर्स करंट. नाउ इंडक्टर इज कनेक्टेड in a series with the source current, so input current is nothing but the inductor average current. Inductor average current, because inductor is connected in series with the source voltage. And in case of boost converter, we know IL average is I naught divided by 1 minus t. And what is I naught? That is V naught divided by R 1 minus D. And in case of boost converter, we know output voltage is Vs divided by R 1 minus D 1 minus D. So this will give Vs divided by R 1 minus D ka whole square. Okay, so the input current will be Vs, that is the input source voltage, that is given 15, divided by resistance, and the value of resistance is 10 duty cycle is 0.6, 1 minus 0.6 ka whole square, that is 15 divided by 10, 0.4 ka whole square. So this will give 15 divided by 10, 4 into 4. So this can be written as in this form. Perfect. So this will give 150 divided by 16. 150 divided by 16. This will the input current. So putting the value of input current in this equation, that is input resistance. We have to find the value of input resistance. So the input resistance will be input voltage, that is the 15, divided by the input current, that is 150. So this will give 1.6 ohm. So input resistance is 1.6 ohm. So the right answer for this question will be 1.6 ohm. So 1.6 ohm is the right answer. So this much question was asked in the GATE 2021 examination from the power electronics. Okay, thank you.